ہم اپنی عارضی قیام گاہ پر پہنچ گئے جہاں ہماری رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کلارا بھی ہمارے ساتھ تھی مگر اس کا انداز قیدیوں جیسا تھا۔ سونے سے قبل میں نے کلارا کے سامنے ہی ساگا سے کہا، کلارا کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو میرے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ کہیں جانا چاہے تو اسے روکا نہ جائے اور اس کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے۔ پھر میں 4 گھنٹے کے لیے دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ 4 گھنٹے کی نیند میرے لیے بہت تھی۔ سو کر اٹھا تو بالکل تازہ دم تھا۔ نہا دھو کر خود کو بے حد حشاش بشاش محسوس کرنے لگا۔ ساگا نے مجھے بتایا جونز کی ریڑھ کی ہڈی میں بال پڑ گیا ہے۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ ممکن ہے زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جائے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ہونے دو، بلکہ اسے اپاہج ہی رہنا چاہیے۔ یہ لوگ درندے ہیں، ان پر رحم کھانا بجائے خود ظلم ہے۔ ساگا نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بھی تم سے متفق ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ اس سے چھٹکارا ہی کیوں نہ حاصل کر لیا جائے۔ میں نے کہا، اس لیے کہ مجھے اس سے چند اہم باتیں معلوم کرنی ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ ساگا نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، وہ تو اس قابل بھی نہیں رہا کہ اس پر تشدد کیا جا سکے، بلکہ وہ تو ہل جل بھی نہیں سکتا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے کہا، تم دیکھنا میں اس صورتحال سے کس طرح فائدہ اٹھاتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت اس کی حالت کیسی ہے؟ ساگا نے کہا، وہ پین کلرز کے زیر اثر ہے۔ جیسے ہی انجیکشن کا اثر ختم ہوتا ہے اس کی تکلیف اود کر آتی ہے۔ میں نے سر کو تفہیمی جنبش دی، پھر پوچھا، اور کلارا کہاں ہے؟ ساگا نے کہا، وہ یہاں سے چلی گئی تھی لیکن تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ واپس آ گئی۔ تمہاری ہدایت کی وجہ سے نہ اسے جانے سے روکا گیا اور نہ واپس آنے سے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کلارا آ گئی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے اجازت طلب کی تھی اور پھر بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے کلارا؟ کیا تمہیں یہاں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کلارا نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ وہ حزن و ملال اور افسردگی سے بھرپور نگاہ تھی جو اس نے مجھ پر ڈالی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ نگاہ جھکا لی۔ کلارا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، گزشتہ چند گھنٹے میں نے بڑے کرب کے عالم میں گزارے ہیں علی۔ مجھے اپنے بارے میں گمان تھا کہ کوئی شخص میری زبان نہیں کھلوا سکتا۔ میں سمجھتی تھی کہ میں ہر قسم کا تشدد برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے وطن کے لیے بہت سی مہمات سر انجام دینے کے باوجود میں اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کی مستحق نہیں ہوں۔ میری ایک معمولی سی غلطی کی پاداش میں میری موت کے پروانے پر دستخط کر دیے گئے اور اب یہ وسیع و عریض زمین مجھ پر تنگ ہے۔ میں کہیں بھی جاؤں مجھے تلاش کر کے مار ڈالا جائے گا۔ میں نے ہمدردی سے کہا، میں تو تمہاری مدد کرنے کا خواہاں ہوں، مگر تم میری مدد قبول کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کلارا بولی، تم ہمارے بدترین دشمن ہو۔ تم مسلمان ہو اور میں یہودی۔ تم فلسطین کے لیے کام کر رہے ہو جبکہ میں اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے سرگرم عمل ہوں۔ ہم دونوں میں مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ اس کے باوجود جب مجھ پر برا وقت آیا تو تم نے میرا ساتھ دیا۔ تمہیں تو معلوم ہوگا کہ ہمیں تمہارے بارے میں خاص طور پر معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا سب درست ہے، لیکن مجھے آج اندازہ ہوا کہ تمہارے بارے میں حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا گیا تھا۔ تم اتنے برے نہیں ہو جتنا ہمیں باور کروایا گیا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اتنا برا نہیں ہوں مگر برا ضرور ہوں۔ کلارا بولی، میں سنجیدہ ہوں علی۔ میں نے تمہارے خلاف جونز کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ تم اگر چاہتے تو میرے خلاف کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے معصومیت سے کہا، تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے دشمنوں پر نفسیاتی حربے بھی آزماتا ہوں۔ ممکن ہے یہ بھی کوئی میرا نفسیاتی حربہ ہو۔ کلارا نے کہا، یہ امکان نہیں، حقیقت ہے، اور تمہارا نفسیاتی حربہ 100% کارگر ثابت ہوا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اس کے باوجود بھی تم میری تعریفوں کے پل باندھنے سے باز نہیں آ رہی۔ کلارا بولی، یہ اس سے تو بہرحال بہتر ہے کہ کسی کی کھال اتار دی جائے یا ہڈیاں توڑ دی جائیں اور اسے عمر بھر کے لیے اپاہج کر دیا جائے۔ میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے غیر جانبدار ہو کر سوچنے کی کوشش کی تو میری کایا پلٹ گئی۔ اب مجھ سے جانبدار ہو کر کچھ بھی نہیں سوچا جاتا۔ تم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہو، تم بھی تشدد کر سکتے ہو، مگر تم نے اس کی بجائے نرمی سے کام نکالنے کو ترجیح دی۔ ایگلر میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی یہودی تنظیم میں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مخالف ہاتھ لگ جائے تو اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے کلارا کو بڑے غور سے دیکھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھی فرش پر نگاہیں جمائے بات کر رہی تھی۔ گفتگو کے دوران اس نے ایک آدھ بار ہی نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا ہوگا۔ ساگا قطعاً خاموش تھا۔ اس دوران میں تہذیب اور بڈ بھی کمرے میں آ گئے تھے، لیکن گفتگو کی نوعیت ایسی تھی کہ انہوں نے دخل اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں نے کہا، میری طرح تم بھی ایک مقصد کے لیے کام کر رہی ہو کلارا، اور جب آدمی کسی خاص مقصد کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اسے صحیح سمجھتا ہے۔ تمہاری نظر میں اسرائیل کا قیام ناگزیر ہوگا، اس کی مضبوطی کے لیے کام کرنا درست ہوگا، اسے طاقت بہم پہنچانے کی خاطر مظلوم اور بے گھر فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بمباری کرنا جائز ہوگا۔
तभी तो तुम एगलर के साथ मुंसलिक हो, और चूंकि इस वक्त तुम मेरे रहम करम पर हो, इसलिए भी तुमसे बहस नहीं करूंगा। हाँ, कभी आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका मिला तो इस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी, लेकिन इस वक्त कुछ कहना तुम्हें उकसाने के मुतरादिफ होगा, और मैं किसी को उकसाना पसंद नहीं करता। रही ये बात कि तुम्हारे अपने साथियों ने तुम्हें रद्द कर दिया है, तो ये अपने कॉज से मुनहरिफ होने का कोई माकूल बहाना नहीं है। ये हादसा मुझ पर भी गुजर चुका है। मेरे अपने मेरे खिलाफ हो गए थे, तो क्या मैं अपने मिशन से मुंह मोड़ लेता? नहीं माय डियर क्लारा, ऐसा कभी नहीं होता। जब मैं जानता हूँ कि मैं हक पर हूँ, मुझे मालूम है कि मैं जो कदम उठा रहा हूँ वो गलत समत में नहीं उठा रहा, तो चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मगर मेरी जिद्दोजहद में कमी नहीं आएगी। मेरी तवानाइयाँ उस मिशन के लिए हैं जिसे मैं दुरुस्त समझता हूँ, और हमेशा उसके लिए वक्फ रहेंगी। तुम्हारे लिए भी मेरा मशवरा यही है कि बदजन होने की बजाय साबित कदमी का मुजाहरा करो और अपने मिशन से रूगर्दानी मत करो। क्लारा बोली, ये तुम क्या कह रहे हो अली? तुम मुझे अपने खिलाफ काम करने की दावत दे रहे हो। मैंने कहा, मैं हर काम फ़र्ज समझ कर करता हूँ क्लारा। इस वक्त मैं तुम्हें जो तलकीन कर रहा हूँ वो इस वक्त की ज़रूरत है। जब तुम एक हरीफ की सूरत में मेरे मुकाबले आओगी तो मेरा रवैया और लबो लहजा मुख्तलिफ होगा। क्लारा ने एक तवील सांस लेकर कहा, तुम एक उसूल पसंद आदमी हो अली। तुम्हारी उसूल पसंदी और साफ गोई ने ही मुझे मुतासिर किया है, और मैं ये सोचने पर मजबूर हुई हूँ कि आया जो कुछ मैं करती रही हूँ वो दुरुस्त था भी कि नहीं। मैंने कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला करो खूब सोच समझ कर करो। क्लारा ने तेजी से कहा, मैं फैसला कर चुकी हूँ अली, और मेरा ये फैसला किसी किस्म की जज्बातियत का नतीजा नहीं है। तहजीब ने कहा, तो तुमने क्या फैसला किया है क्लारा? क्या तुम हमारे मिशन में शरीक होना चाहती हो? क्लारा ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, मेरे अपने साथी मेरी जान के दुश्मन हो रहे हैं, लिहाजा तुम लोगों का साथ देना मेरी मजबूरी है। तहजीब ने मायूसाना अंदाज में कहा, ये कोई फैसला तो ना हुआ क्लारा, ये तो एक मजबूरी हुई, और जिस किस्म की मजबूरी से तुम दो चार हो उसमें तो ये फैसला कोई भी कर सकता है। मैंने कहा, मैंने खुद क्लारा से वादा किया था तहजीब कि मैं एगलर के खिलाफ इसकी मदद करूंगा, लिहाजा मैं क्लारा का ये फैसला कबूल करने के लिए मजबूर हूँ। बड ने हैरत से कहा, हाँ, वक्त गुजरने के बाद ये तुम्हारे खिलाफ काम करती नजर आए? मैंने कहा, छोटी बातें मत किया करो बड, हमारे खिलाफ काम करने वाले कम हैं क्या जो एक का इजाफा होने से हम खौफजदा होते फिरें? क्लारा ने गुस्सीली आवाज में कहा, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, और फिर ये इम्कान भी नहीं है कि आइंदा कभी मैं यहूदी कौस के लिए काम करूंगी। बड ने उसके लहजे से मुतासिर हुए बगैर कहा, थोड़ी देर कबल तुमने हमारे खिलाफ जोन्स की जो मदद करने की कोशिश की थी उसे किस खाने में फिट किया जाए? तहजीब ने बड को सरजनिश की, बोली, फजूल बातों में उलझने से गुरेज करो बड, एक फैसला हो चुका तो अब उस पर जिराह करने की क्या गुंजाइश रह जाती है। क्लारा बोली, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत अक्लमंद हो, मगर तुम तो निहायत बेवकूफ़ी की बातें करते हो। इस वक्त मेरा रद्द अमल जायज़ था, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया था, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। एक साहब एडम डी फ्लॉक बने हुए थे, एक प्रोफेसर ज़ारा थे, और एक रीना सोलोमन। जब अचानक इनकी हकीकत खुली तो मेरा रद्द अमल और क्या होता? क्या तुम्हारे ख्याल में मेरा रद्द अमल कुछ और होना चाहिए था? बड बगलें झांकने लगा। मैंने कहा, इसलिए कहता हूँ कि बोलने से कबल सोच लिया करो। इस हवाले से तुमने मुझ पर भी तंज किया था। तुम क्या समझते हो, अगर ये बात न होती तो मैं क्लारा को हरगिज माफ न करता, लेकिन जो कुछ उसने किया वो फितरी था। बड ने ढिठाई से कहा, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो हर एक से गलती हो जाती है। सागा ने खनकार कर कहा, बेहतर होता कि मजीद बातें खाने की मेज पर कर ली जाती। हम सब उठ खड़े हुए। कोई 2 घंटे बाद इत्तला मिली कि जोन्स को होश आ गया है। डॉक्टर ने उसे दूसरी बार बेहोशी का इंजेक्शन दिया था। मैंने क्लारा से कहा, अगर जोन्स का सामना करने में कोई तरद्दुद ना हो तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। क्लारा ने कहा, तरद्दुद किस बात का? और वो हमारे साथ उस मकाम पर पहुंच गई जहां जोन्स को रखा गया था। इंजेक्शन का असर ज़ायल होने के बायस जोन्स के चेहरे पर कर्ब के आसार नजर आ रहे थे। वो एक चौबी तख्त पर दराज था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्या हाल है जोन्स? तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझ पर हमला किया था, ये उसका अंजाम है। जोन्स ने कराह कर कहा, मुझे शदीद तकलीफ हो रही है, मुझ पर तंज मत करो। मैंने कहा, फारसी में कहते हैं खुद करदा रा इलाज नीस्त, लेकिन तुम फारसी क्या जानो? तुम तो जवाब में यही कह सकते हो कि ज़बान यार मन तुर्की और मन तुर्की नमी दाना, मगर ये कहने के लिए भी फारसी जानना ज़रूरी है जिससे तुम वाकिफ नहीं हो। मेरी बातों के जवाब में जोन्स ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, पानी। मेरे इशारे पर सागा ने अपने एक आदमी से पानी लाने को कहा और मुझे अफसोस होने लगा। जोन्स की तकलीफ शदीद नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो सोचने समझने से भी माजूर हो गया था और इस सूरत हाल का तदारुक करना ज़रूरी था, वरना जोन्स से मालूमात कैसे हासिल होती। मैंने डॉक्टर से कहा, तकलीफ की शिद्दत इसके हवास पर असरअंदाज हो रही है और मुझे इससे मालूमात हासिल करनी है।
डॉक्टर ने कहा, मामला रीढ़ की हड्डी का है मिस्टर अली। किसी बहुत बड़े अस्पताल में तो मुमकिन है इसका इलाज हो सके, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कदरे झुंझला कर कहा, मैं तुमसे इसका इलाज करने को कब कह रहा हूँ। वक्ती तौर पर इसे तकलीफ ज़ाइल करने के लिए कोई टैबलेट दो। डॉक्टर ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया, बोला, नहीं मिस्टर अली, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये टैबलेट निगल नहीं सकेगा। पानी भी सिर्फ उस सूरत में पी सकता है जबकि इसके हलक में पानी टपकाया जाए। रीढ़ की हड्डी पूरे जिस्म को बैलेंस करने के काम आती है। इसके क्रैक होने का मतलब यह है कि अब इसके लिए हिलना जुलना भी मुमकिन नहीं रहा। अपनी तमाम तर मदहोशी के बावजूद जोन्स ने डॉक्टर की बात न सिर्फ सुनी बल्कि उसका मफहूम भी समझ लिया। वो गिड़गिड़ाया, मुझ पर रहम करो, मुझे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने पर मजबूर मत करो। इससे बेहतर तो ये है कि मुझे जहर दे दो या गोली मार दो। मैंने कहा, इसे दर्द ज़ाइल करने के लिए इंजेक्शन दो और फौरी तौर पर ड्रिप लगाने का बंदोबस्त करो। मेरी हिदायत पर डॉक्टर ने जोन्स को दर्द दूर करने का इंजेक्शन लगाया और ज़रा ही देर बाद उसके ड्रिप भी लगा दी। इंजेक्शन ने फौरी तौर पर असर किया था और देखते ही देखते जोन्स के चेहरे पर बिखरे हुए कर्ब के तासुरात गायब हो गए। मैंने जोन्स से कहा, तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि तुम पूरी तरह मेरे रहमो करम पर हो। तुम ये भी देख चुके हो कि तुम्हारी तकलीफ किसी हद तक नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसे में अक्लमंदी का तकाजा यही है कि मुझसे ताउन करो। जोन्स ने क्लारा की तरफ देखा जो मेरे नज़दीक ही खड़ी थी। उसने क्लारा पर एक नज़र डालने के बाद मुझसे कहा, मैं तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ। बर्ड ने मज़े का खेज लहजे में कहा, वो तो तुम पहले भी तैयार थे, लेकिन मौका मिलते ही तुम्हारी नीयत में फतूर आ गया। अगर तुम्हें फिर मौका मिले तो फिर वही करोगे जो तुमने पहले किया था। क्लारा ने कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है बर्ड, ये ऐसा ही बदतैनत आदमी है। मैंने कहा, इसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर मैंने तुम्हारे शुआई पिस्तौल से बैटरी न निकाली होती तो तुम इस वक्त जिंदा ना होती। क्लारा ने मुतनफ़िराना अंदाज में कहा, इसीलिए मैं इन लोगों से बदजन हो गई हूँ। ये सब के सब एहसान फरामोश हैं। मैंने कहा, यह बात समझ में नहीं आई क्लारा कि तुम उन माइक्रो फिल्मों के हुसूल के लिए सख्त बेताब थी। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उन पर हिफाजती मसाला लगाया गया है? क्लारा ने नफ़ी में सर हिलाया, बोली, नहीं, मुझे इस हकीकत से बेखबर रखा गया, वरना मैं कभी इतनी जिद्दोजहद न करती। मैंने जोन्स से सवाल किया, और तुम्हें शुरू से ही इस बात का इल्म था? जोन्स ने नफ़ी में सर हिलाया, बोला, नहीं। जब मुझे शीगुराई का चार्ज लेने का हुक्म मिला उस वक्त यहाँ के बारे में ब्रीफिंग दी गई थी। इससे कबल यहाँ के बारे में कुछ भी मेरे इल्म में नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, मुझे उस ब्रीफिंग से आगाह करो जो तुम्हें दी गई थी। जोन्स ने कहा, उस ब्रीफिंग की इब्तिदा गोइटे हिल में रूनुमा होने वाले वाक़े से हुई थी। मुझे बताया गया था कि अली यार खान को शख्सियत की तब्दीली के बाद एक मुहिम पर गोइटे हिल भेजा गया था। न सिर्फ वो मुहिम नाकाम हुई बल्कि जजीरे मर्ग भी तबाह कर दिया गया और गोइटे हिल में भी एगलर का सफाया कर दिया गया। ये बात यकीनी हो गई कि अली पर शख्सियत की तब्दीली का अमल कारगर साबित नहीं हो सका। चुनांचे शीगुराई से 2 माहिर अफराद हंगामी तौर पर गोइटे हिल रवाना हो गए, जहां उन्होंने अली यार खान की कार को बम से उड़ा दिया, मगर वो होशियार था, इस हमले से बच निकला। उसके बाद इंस्पेक्टर बंस डिले नामी एक सरकारी अहलकार ने उन दोनों की मदद की। मदद क्या की बल्कि उन्हें धोखा दिया और एगलर को मजीद नुकसानात से दो चार होना पड़ा। उसके बाद शीगुराई में रीना सोलोमन नमूदार हुई, जो फैल्कन नामी गिरोह की सरबराह होने का दावा करती है, और दूसरी तरफ एडम डिफ्लॉक नामी एक शख्स एगलर की मदद करता है। एगलर के मामलात में हैरत अंगेज हद तक दखील हो जाता है। जोन्स ने एक लम्हे के लिए रुककर क्लारा पर निगाह डाली, फिर असर नौ सिलसिला कलाम जोड़ा। बोला, मुझे बताया गया था कि एडम डिफ्लॉक की रसाई मादाम क्लारा की ख्वाबगाह तक हो गई है। एगलर को गोइटे हिल और शीगुराई में कदम कदम पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। क्लारा पर इल्ज़ाम था कि उसने एक गैर मुतल्लिक शख्स को अपने मामलात में इस दर्जे मुदाखलत का हक किस तरह दिया। इस इल्ज़ाम की बिना पर उसके लिए सजाए मौत तजवीज़ की गई और मुझे हुक्म दिया गया कि फौरी तौर पर यहाँ का चार्ज लेकर मामलात सुधारने के लिए मुनासिब इक़दामात करूँ। मैंने कहा, तुम्हारे बयान में कहीं उस आले का जिक्र नहीं आया जिसकी मदद से तुमने हमें शनाख्त किया। जोन्स ने कहा, उसका नाम स्मेल डिटेक्टर है। वो आला महज एहतियातन मेरे हवाले किया गया था ताकि अगर तुम हमारे नज़दीक आने की कोशिश करो तो बचकर न जाने पाओ। तहजीब ने सवाल किया, क्या इस बात का शुबा था कि हम में से कोई शीगुराई में मौजूद हो सकता है? जोन्स ने कहा, नहीं, लेकिन तुम लोगों से कभी भी और कहीं भी मुठभेड़ होने का इम्कान रहता है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ हम वक्त अलर्ट रहने का उसूली फैसला कर लिया गया था। बट ने कहा, अब तो ये बिल्कुल सीधा हो गया है चीफ, हर सवाल का दुरुस्त जवाब दे रहा है। मैंने पूछा, ये बताओ कि तुम्हारी हाई कमान में कौन कौन लोग शामिल हैं? जोन्स के चेहरे के तासुरात महज एक लम्हे के लिए तब्दील हुए थे और ये तब्दीली भी ऐसी नहीं थी जो आसानी से नोट की जा सकती। गालिबन मेरा सवाल उसके लिए कुछ ज्यादा ही गैर मुतवक्के था। जोन्स ने कहा, मुझसे सिर्फ वो बातें पूछो जिनके जवाब मैं दे सकूं।
मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम तो मुझसे ताउन करने की बातें कर रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया? वो बोला, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन जो बात मेरे इल्म में ही नहीं है उसका क्या जवाब दूं? मैंने कहा, झूठ मत बोलो जोन्स, मुझसे वाकिफ होते हुए भी तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे धोखा देना कितना मुश्किल काम है? जोन्स ने मुर्दार आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम क्लारा से मालूम कर सकते हो, हाई कमान के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। क्लारा धीमी आवाज में बोली, ये ठीक कह रहा है, हाई कमान के मामलात बेहद खुफिया रखे जाते हैं, शायद ही किसी को इसके बारे में कुछ मालूम हो। मैंने डॉक्टर की तरफ मुड़कर पूछा, इंजेक्शन का असर कितनी देर तक रहेगा? वो बोला, मेरा अंदाजा है कि 4 घंटे के बाद इंजेक्शन का असर जायल होना शुरू हो जाएगा। मैंने बुलंद आवाज में जोन्स को मुखातिब किया, सुन लिया तुमने? उसके बाद तुम्हें दूसरे डोज की जरूरत पड़ेगी जो मेरी इजाजत के बगैर नहीं दी जाएगी। जोन्स ने अटक अटक कर कहा, तुमने तो कहा था कि अगर मैंने तुमसे ताउन किया तो तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दोगे। मैंने कहा, हाँ, मगर खिलाफ वर्जी करने में पहल तुमने की है। पहले मैंने सोचा था कि तुम पर तशद्दुद करूं, मगर अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बस तुम्हें इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, कमर की तकलीफ खुद ही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देगी। वो बोला, ये ज्यादती है, तुम मुझसे वो बात मालूम करना चाह रहे हो जो मेरे इल्म में ही नहीं है। क्लारा भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है। मैंने कहा, तुम्हारे इल्म में कुछ ना कुछ जरूर है। मैंने तुमसे रैंडल उर्फ मोशे हावर्ड का पता इसलिए दरियाफ्त नहीं किया कि वो तुम्हारे इल्म में नहीं होगा। जोन्स ने कहा, हाई कमान के बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं। मैंने कहा, मैंने तय कर लिया है कि क्लारा को ये तमाशा भी जरूर दिखाऊंगा। मेरा ख्याल है कि तुम आधे घंटे भी कमर की तकलीफ नहीं झेल सकोगे। जोन्स ने खासा वाविला किया, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने कहा, मैं जा रहा हूं जोन्स, जब तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाए तो मुझे बुलवा लेना। मैं तेजी से पलट कर बाहर निकल गया। तहजीब ने मुझसे कहा, मुमकिन है जोन्स हाई कमान के बारे में वाकई कुछ नहीं जानता। सागा बोला, वो कुछ जानता हो या न जानता हो, वो इसी सुलूक का मुस्तहिक है। अली के एहतराम में मैं कुछ नहीं बोला, वरना उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता। क्लारा ने कहा, तुम बहुत पुरएतमाद नजर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उससे किसी किस्म की मालूमात के हुसूल की तवक्को मत रखना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दर हकीकत मैं उससे कहीं ज्यादा पुरयकीन हूँ जितना तुम समझ रही हो। क्लारा मुझे उलझी हुई नजरों से देखने लगी और बड़बड़ा कर रह गई। समझ में नहीं आता। बट ने कहा, चीफ के अंदाजे भी बहुत कम गलत साबित होते हैं, और जिस बारे में इन्हें यकीन हो वो तो गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद 4 घंटे हमने इधर उधर की बातें करते गुजारे। फिल वक्त और कोई काम भी नहीं था। तहजीब ने हंसकर कहा, तुम्हारे 4 घंटे तो पूरे हुए, अब देखो क्या होता है। मैंने कहा, अब देखना यह है कि वो तकलीफ कितनी देर बर्दाश्त करता है। जब वो जबान खोलने का इरादा करेगा तो मुझे बुलवा लेगा। खिलाफ तवक्को आधे घंटे के बाद ही मेरा बुलावा आ गया। मैंने उठते हुए कहा, इतनी जल्दी तो वो शिकस्त नहीं खा सकता, ताहम देख लेने में क्या हर्ज है। हम एक बार फिर जोन्स के पास पहुंच गए। उसकी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ हो भी रही होगी तो इतनी कम थी कि वो बआसानी उसे बर्दाश्त कर रहा था। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों बुलवाया है जोन्स? मैंने तुमसे कहा था कि जब जबान खोलने का इरादा करो तो मुझे बुलवाना। जोन्स ने कहा, मैं तुमसे दरखास्त करता हूं कि अपने फैसले पर नजरसानी कर लो। तुम एक गलत फहमी के तहत मुझे क्यों ईजा पहुंचाने के दरपे हो। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा ही कि तुम्हारी तकलीफ अगर बढ़ी तो तुम्हारा क्या हशर करेगी। वो बोला, तुम अगर मुझे अजियत से ही 2-4 करना चाहते हो तो और बात है, लेकिन तुम अपना शौक पूरा करने के लिए कोई बहाना क्यों बना रहे हो। मैंने कहा, मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत मौजूद है डियर जोन्स कि जब मैं तुम्हें ईजा पहुंचाना चाहूंगा तो ये कहकर पहुंचाऊंगा कि तुम इसके मुस्तहिक हो। जोन्स घिघियाया, मान जाओ अली, इस ईजा रसानी से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हें तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड हुआ करता था, तुम्हें इसका ख्याल करना चाहिए। यूं गिड़गिड़ाते हुए और रहम की भीख मांगते हुए जरा भी अच्छे नहीं लगते। वो बोला, वक्त ने तुम्हें फातिह बना दिया है तो तुम मेरे ऊपर तंज कर रहे हो, मेरे जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हो। मैंने कहा, वक्त कभी यकसा नहीं रहता डियर जोन्स, कल तुम्हारा वक्त था और आज मेरा वक्त है। जब तुम्हारा वक्त था तो तुमने मेरे कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया। उस वक्त तुमने सोचा था कि अगर वक्त पलट गया तो क्या होगा। वो बोला, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया तुम उसे दोहरा सकते हो, मगर ये तो सरासर ज्यादती है कि बिला जवाज किसी पर जुल्म किया जाए। मैंने कहा, नहीं, ये ज्यादती नहीं है। अगर होती तो तुम कभी फलस्तीन के निहत्ते लोगों पर बमबारी न करते। तुम्हारे इस तर्ज अमल से साबित होता है कि जुल्म करना बहुत अच्छी बात है। तो जब ये अच्छा काम तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम इस पर शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जोन्स ने एक बार फिर फरियाद करना शुरू कर दी। वो बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था।
میں نے کہا यहाँ डॉक्टर मौजूद है जोन्स। मेरा ख्याल है तुम्हें इंजेक्शन की ज़रूरत महसूस होना शुरू हो गई है। जब तकलीफ नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए और तुम्हें इंजेक्शन की ज़रूरत महसूस हो तो बता देना, लेकिन ख्याल रहे कि इंजेक्शन तुम्हें उसी सूरत में दिया जाएगा जब तुम ज़बान खोलने पर आमादा हो जाओगे। जोन्स ने दादो फरियाद का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया, मगर मैंने उसकी तरफ से कान बंद कर लिए थे और अपने साथियों को बैठने का इशारा करता हुआ खुद भी बैठ गया था। क्लारा मुस्तरिब नजर आ रही थी। सागा खुश था जबकि तहजीब और बड मुतमईन थे। उन्हें भी मेरी तरह यकीन हो गया था कि जोन्स कुछ न कुछ ज़रूर जानता होगा।